ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ ٹریڈ مل پر تیز تیز دوڑ رہا تھا۔ اس کا خاص ملازم اس کے پیچھے اپنے ہاتھ میں ٹاول لیے کھڑا تھا، جبکہ پاس پڑی اس چھوٹی میز پر فریش جوس رکھا ہوا تھا جو ابھی ابھی داد نے لا کر رکھا تھا۔ سر کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اسی لیے وہ شخص بنا دستک دیے خوشی سے اندر آ گیا۔ اس کے اس طرح آنے پر جہاں داد نے اسے گھبرا کر دیکھا، وہیں ٹریڈ مل پر دوڑتا ہوا شخص بھی اسے اتر کر دیکھنے لگا۔ اس نے بلیک کلر کا بنیان پہنا ہوا تھا، جسم پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا، جس سے صاف لگ رہا تھا وہ کافی دیر سے اپنے جم روم میں موجود ایکسرسائز کر رہا ہے۔ اس کے چاکلیٹ براؤن بال پسینے کی وجہ سے ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، جبکہ ہیزل براؤن آنکھیں سامنے موجود شخص کو دیکھ رہی تھیں۔ سر، آپ نے یہ شرٹ منگوائی تھی نا، تو میں لے آیا۔ اس نے شاپنگ بیگ میں موجود وائٹ کلر کی شرٹ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، جو کہ سلور ریپر میں پیک تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اتنے اچھے کام پر سامنے کھڑا اس کا سر اسے کوئی انعام دے گا، اور وہ صحیح تھا، انعام تو اسے ملنا تھا، لیکن بیسٹ سٹائل میں۔ اس کا اشارہ کرتے ہی داد اس کے قریب چلا گیا اور اپنے ہاتھ میں موجود ٹاول اس کی طرف بڑھایا۔ تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے کتنا وقت ہوا ہے؟ بھاری گھمبیر آواز اس جگہ گونجی۔ اس کی نظریں مستقیم پر جمی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھوں سے وہ اپنے سفید بدن پر موجود پسینہ ٹاول کی مدد سے صاف کر رہا تھا۔ سر، 1 ہفتہ۔ اس 1 ہفتے کے اندر میں نے تم سے کتنے کام کروا لیے ہیں؟ سر، آپ نے مجھ سے یہ پہلا کام کروایا ہے۔ اب کی بار مستقیم بھی گڑبڑا چکا تھا۔ مطلب پہلا کام، پہلی غلطی اور آخری دن۔ اس کے آخری دن بولتے ہی مستقیم کا جیسے سانس رک چکا تھا۔ فکر مت کرو، زندگی کا آخری دن نہیں کہہ رہا، کام کا کہہ رہا ہوں۔ پہلی غلطی ہے اسی لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ آج کے بعد مجھے تم یہاں پر نظر نہ آؤ۔ جوس کا گلاس جو داد نے اسے دیا تھا، اس میں سے چند سپ لے کر اس نے واپس رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ سر، اس شرٹ کا کیا کروں؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود وہ مہنگی شرٹ اس کی طرف بڑھائی، لیکن اسے اس نے نہیں چھوا۔ جلا دو، ایک لفظ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ مستقیم حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں کھل گیا؟ اس کے کمرے سے جاتے ہی داد نے مستقیم کو دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا خوش ہوں؟ مجھے بولا تھا 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ شرٹ لا کر انہیں دے دوں، چاہے کتنے کی ہی کیوں نہ لینی پڑے، اور وہ بھی صرف اسی سے جس نے یہ خریدی تھی۔ میں اس آدمی کو ڈبل قیمت دے کر یہ شرٹ لایا ہوں، وہ بھی 1.5 گھنٹے میں، اور مجھے انعام کے بجائے نوکری سے نکالا جا رہا ہے، اور بول رہے ہیں شرٹ جلا دو۔ یہ بیسٹ کی طرف سے انعام ہی ہے کہ تم یہاں زندہ کھڑے ہو، ورنہ جس طرح تم بنا اجازت کمرے میں آئے تھے نا، اس وقت اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے۔ یہ شرٹ بیسٹ اسے نہیں پہنے گا، تو اتنے پیسے خرچ کر کے منگوائی کیوں؟ کیونکہ اس پر بیسٹ کی نظر پڑ چکی تھی، لیکن شاپ کیپر نے کہا کہ یہ بک چکی ہے، اس لیے اس نے یہ شرٹ منگوائی، کیونکہ اسے یہ پسند آ چکی تھی، اور جو چیز اسے پسند آ جائے وہ کسی اور کو نہیں دیتا، اور اگر کوئی اس کی پسند کی ہوئی چیز کو لے لے تو نہ تو بیسٹ اسے خود استعمال کرتا ہے، نہ ہی دوسرے کو کرنے دیتا ہے۔ اس شخص کو بھی مار دے گا جو اس کی چیز لینا چاہے گا، اور اپنی پسندیدہ اس چیز کو بھی ختم کر دے گا اگر کسی نے ہاتھ لگایا ہوگا، لیکن کسی کو دے گا نہیں۔ داد کے کہنے پر اس نے اپنا ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اچھا ہی تھا جو بیسٹ نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ جو شخص ادھ کھلے دروازے سے بنا اجازت آنے پر جان سے مار سکتا ہے،
वो बड़ी गलती पर क्या सज़ा देगा? इसकी पहली गलती माफ़ कर दी, लेकिन वो दूसरी माफ़ नहीं करता, बल्कि शायद माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं देता। कमरे में दाखिल होते ही एसी की ठंडी हवा उसके वजूद से टकराई। एसी की कूलिंग से ठंडी हो रही थी। वो सीधा अपने वॉशरूम में चला गया और वॉशरूम में ही अपनी वार्डरोब को खोला, जिसके खुलने पर उसमें लाइट्स जलती थीं। उसने अपना सूट निकाला जब नज़र वार्डरोब में रखे सफ़ेद दुपट्टे पर गई। वो चंद लम्हे उस दुपट्टे को देखता रहा और फिर उस दुपट्टे को उठाकर उसने उस पर अपने लब रख दिए। कानों में वही मासूम सी बच्चों जैसी आवाज़ गूंजने लगी। दुआ करो कि हमारी मुलाकात फिर ना हो, क्योंकि अगर हो गई तो तुम्हें इस बेस्ट की कैद से कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरी मोहब्बत हो और दुआ करो ये मोहब्बत मोहब्बत ही रहे। अगर तुम मेरा जुनून, मेरा पागलपन बन गई ना, तो तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकेगा। फिर तुम्हें सारी उम्र बेस्ट की कैद में ही रहना होगा। दुआ करो कि हम फिर कभी ना मिले, क्योंकि तुम्हारी नाजुक जान मुझे झेल नहीं पाएगी और तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है और मैं तुम्हें अपनी इस दुनिया में नहीं लाना चाहता। बस शर्त सिर्फ ये है कि हम फिर कभी ना मिलें। इस दुपट्टे पर नज़रें जमाए वो सरगोशी भरे अंदाज में कह रहा था, लेकिन दिल में यही ख्वाहिश थी कि वो दोबारा मिल जाए। उस लड़की को ढूंढना बेस्ट के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन इसने उसे कभी ढूंढा नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मासूम इस खून खराबे वाली दुनिया में आए। हाँ, लेकिन अगर इसे दोबारा मिली तो वो इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अगर कुदरत ने उस लड़की को इसके लिए रखा तो वो इसे ज़रूर मिलेगी और फिर बेस्ट की ही रहेगी। आहत, मेरा बच्चा, तुम बाप बन गए हो, माशाल्लाह से बेटी हुई है। उसकी फ़ोन उठाते ही ज़ोहरा बेगम ने खुशी से लबरेज लहजे में कहा, जबकि दूसरी तरफ तो वो उनकी बात सुनकर शॉक्ड हो चुका था। आप सच कह रही हैं मामा? क्या मैं वाकई? खुशी से उसके अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। हाँ मेरा बच्चा, बस तुम जल्दी से आ जाओ। हरीम कैसी है? वो तो ठीक है ना? वो भी बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ तुम्हारा ही इंतज़ार है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। उसकी आवाज़ भीग चुकी थी और ज़ोहरा बेगम जानती थी कि वो इस वक्त रो भी रहा होगा। उसकी आंखों से खुशी की वजह से आंसू गिर रहे होंगे। उसे दुआएं देकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ आहत भाई, आप रो रहे हैं? कैप्टन शादाब ने उसके पास आकर कहा, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ किए। मैं बाप बन गया शादाब, मेरी बेटी हुई है। खुशी उसके लहजे से फूट रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो हर किसी को अपने इस खुशी की खबर में शरीक करे। आप सच कह रहे हैं? मतलब कैप्टन आहत के बेटी हुई है? हाँ शादाब, मेरी बेटी हुई है। खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी। बस अब इसे तो इस बात का इंतज़ार था कि जल्दी से वो ये मिशन कंप्लीट करके अपनी बीवी और बेटी के पास चला जाए। रोहिया, क्या देख रही हो? रोहिया कब से ज़ोहरा बेगम की गोद में मौजूद कंबल में लिपटी उस बच्ची को देख रही थी और उसके मुसलसल इसी तरह से देखने पर हरीम ने फिक्रमंदी से उसे देखते हुए कहा। इस वक्त हॉस्पिटल के कमरे में हरीम के साथ बस वो दोनों ही मौजूद थी। मैं कुछ सोच रही हूँ। तुम भी सोचती हो? खैर, क्या सोच रही हो? ज़ोहरा बेगम ने एक नज़र अपनी बेटी को देखकर दोबारा नज़रें अपनी पोती की तरफ कर लीं। मैं सोच रही हूँ कि ये पैदा कैसे हुई। रोहिया, जैसे सारे बच्चे पैदा होते हैं, ये भी वैसे ही पैदा हुई है। नहीं मामा, मेरी दोस्त बता रही थी कि जब मियाँ बीवी एक साथ होते हैं ना, जब बेबी पैदा होते हैं। लेकिन भाई तो 1 महीने से मिशन पर गए हुए हैं, तो ये कैसे पैदा हुई? उसने उलझन भरे अंदाज में कहा। उसका चेहरा देखकर हरीम ने अपनी हंसी दबाई, जबकि ज़ोहरा बेगम ने ज़ोर से उसका कान खींचा।
उफ मामा, क्या कर रही हैं? छोड़ें। कौन सी दोस्त है जो ये उल्टी सीधी पटियां पढ़ा रही है तुम्हें? ज़रा मुझे नंबर दो उसका, मैं भी तो पूछूं कि मियाँ बीवी के साथ होने से ऐसा क्या होता है जो बच्चे पैदा हो जाते हैं। ज़ोहरा बेगम के सख्त लहजे से उसे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, लेकिन क्या गलत बोला ये उसे समझ नहीं आई थी। उसने तो वही कहा था जो उसकी दोस्त ने इसे बोला था। उसने एक नज़र बेड पर लेटी हरीम को देखा जो अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी, और फिर एक नज़र ज़ोहरा बेगम को जो अपनी गोद में मौजूद अपनी रोती हुई पोती को चुप करवा रही थी। ज़ोहरा बेगम ने इसे डांट दिया था, मतलब अब इनके सामने ये बात करने से अगली दफ़ा मार भी पड़ सकती है, तो इसलिए अब ये बात उसे हरीम से पूछनी थी ताकि उसकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ज़ोहरा बेगम के कमरे से जाते ही उसने रोहिया को अपने करीब बुलाया। तुम्हारा एडमिशन हो गया? नहीं, पापा से कहा था, उन्होंने कहा था आज हम जाएंगे और मैं फॉर्म ले आऊँगी, लेकिन बेबी की वजह से प्रोग्राम चेंज हो गया। उसने कॉट में लेटी बेबी की तरफ इशारा किया। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें कॉलेज जाने की? हाँ भाभी, खुशी तो बहुत हो रही है। अब सबको पता चलेगा रोहिया बड़ी हो गई है। कॉलेज में जाने से बड़े हो जाते हैं? जी। अच्छा मुझे बताएं ना, मामा ने डांटा क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा था? मैंने तो वही बोला था जो आयजा ने मुझे बताया था। उसकी सुई फिर से वहीं अटक चुकी थी। रोहिया, मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे अलग होता है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार तो हम सब एक दूसरे से करते हैं। बीवी और शौहर के जैसा प्यार और किसी रिश्ते में नहीं होता। उनके प्यार करने का तरीका अलग होता है। उसने दबे लफ्ज़ों में उसे बात समझानी चाहिए, लेकिन वो रोहिया थी जिसे सीधी कही हुई बात ठीक से समझ नहीं आती थी, तो ये दबे लफ्ज़ों की बात कैसे समझ आती? छोड़ो इन बातों को, बकौल तुम्हारे तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तो तुम खुद ही इन बातों को समझ जाओगी। हरीम ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा। इजाज़त मिलते ही वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी जल रही थी। पूरे कमरे में एसी की ठंडक के साथ साथ सिगरेट का धुआं भी फैला हुआ था, जिससे ये बात जाहिर हो रही थी कि ये अमल काफ़ी देर से चल रहा था। सर मोहित का पता चल गया है। दाद के कहने पर उसने अपनी बंद आंखें खोली और उंगलियों में दबा सिगरेट ऐश ट्रे में फेंका। कहाँ है वो? सऊदिया में। आप कहें तो उसे यहाँ ले आऊं? नहीं, मैं खुद वहाँ जाऊँगा। सुबह होने से पहले मेरे वहाँ जाने का सारा इंतज़ाम करो। ओके सर। अपना सर हिलाकर वो उसके कमरे से निकल गया। मैं इसे कैसे उठाऊं? गिर गई तो? उसने कॉट में लेटी उस बच्ची को देखते हुए कहा जो रो रही थी, और रोहिया उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। ज़ोहरा बेगम इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी, इसीलिए ये काम उसके ज़िम्मे था कि इस रोती हुई बेबी को उठाकर उसकी मामा को दे दे। आप खुद उठा लें, मुझसे गिर जाएगी भाभी। मुझसे उठा नहीं जा रहा, तुम इसे उठाओ, नहीं गिरेगी। बस जैसे मैं बता रही हूँ वैसे उठाओ। नरमी से कहकर वो उसे बेबी को पकड़ने का तरीका बताने लगी। कितनी हल्की है ये। बेबी को गोद में लेते ही उसने बच्चों जैसी खुशी लिए हरीम की तरफ देखा, जबकि उसके अंदाज पर हरीम को बेसाख्ता हंसी आ गई। उसने बेबी को हरीम की गोद में दे दिया और खुद वापस जाकर बैठ गई। ये मंजर सऊदिया में बने एक होटल के रूम का था, जहां वो शख्स लाइट ऑफ किए मज़े से सो रहा था, जब सोते में उसे किसी की भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी, जिसे पहले तो उसने अपना वहम समझा, लेकिन बाद में दोबारा वो आवाज़ जब मज़ीद सख्ती से सुनाई दी तो उसने झटके से अपनी जगह से उठकर लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही नज़र सबसे पहले वहाँ रखी कुर्सी पर बैठे शख्स पर गई, जो अपने दोनों पाँव टेबल पर रखे
अपना सर कुर्सी से टिकाए उसे ही देख रहा था। हेलो मोहित, बेस्ट, तुम यहाँ? जहाँ तुम वहाँ मैं। आखिर कब तक छुपते तुम मुझसे? नहीं, मैं क्यों छुपूंगा? उसने अपने लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश की। हाँ, तुम क्यों छुपोगे मुझसे? तुमने कौन सा कोई गलत काम किया है? तुमने कौन सा किसी का रेप किया है? पाँव टेबल से नीचे करके उसने पुरस्कार अंदाज में कहा, जबकि उसके कहने पर मोहित के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। बेस्ट सब जानता था, तो फिर इससे कुछ छुपाने का क्या फ़ायदा? देखो बेस्ट, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा किसी के साथ ये सब नहीं करूँगा। मैंने बस उस लड़की को देखा और मैं बहक गया। मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं दोबारा का मौका ही नहीं दूंगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, दिलकश मुस्कुराहट, लेकिन मोहित को उस वक्त उसकी मुस्कुराहट से खौफ आ रहा था। बेस्ट ने साइड टेबल पर रखी वो नोकीली चीज़ उठाई, जिसे देखकर मोहित का सांस रुक चुका था। ये उसने साइड टेबल पर कब रखी? शायद जब वो यहाँ आया था। उसके हाथ में मौजूद वो चीज़ देखकर मोहित ने अपने हाथ उसके सामने जोड़ दिए, जबकि उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। क्या पता कोई ऐसी चीज़ मिल जाती जिससे वो बेस्ट का मुकाबला कर सकता। लेकिन इस वक्त कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। वो कमरे के कोने में खड़ा यही सोच रहा था, यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे बाप का, तुम्हारी माँ का वास्ता। उसके कहने पर बेस्ट की रगें तन चुकी थीं, जबकि आंखों की सुर्खी भी बढ़ चुकी थी। अगले ही पल उसने मोहित की सांसें रोक दी। उसने इस तरह से उसे मारा था कि उसकी चीख भी नहीं निकल सकी थी, जबकि उसकी सांसें रोकने के बावजूद भी वो बेदर्दी से उसे मार रहा था। इसके कमरे की लाइट खुली देखकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर हरीम उसके कमरे में आ गई। रोया, तुम सोई नहीं हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मामा ने कहा था आपको आराम करवाना है। कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। उसकी बात पर हरीम मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। 3 दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से आई थी। मैं ठीक हूँ। कमरे में पानी नहीं था तो वही लेने आई थी। तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो यहाँ पर आ गई। क्या कर रही हो? मैं स्टोरी पढ़ रही थी। कौन सी? ब्यूटी एंड द बेस्ट। रोया ने स्टोरी बुक उसके सामने रखी। इस किताब में स्टोरी के साथ साथ कार्टून स्टाइल में तस्वीरें भी मौजूद थीं। तुम तो कह रही थी अब तुम फर्स्ट ईयर में जाओगी, तो अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी ये बच्चों वाली कहानी पढ़ रही हो। भाभी, ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है और पता है मैं क्या सोचती हूँ कि मेरी भी लाइफ में कोई बेस्ट आएगा और वो मुझे कैद कर लेगा। रोया मेरी जान, ये सारी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बेस्ट तो अपनी ब्यूटी से इतना प्यार करता है भाभी। वो शहजादा होता है और हाँ, वो अपनी ब्यूटी से बहुत प्यार करता है। तो फिक्र मत करो, हम भी अपनी ब्यूटी के लिए ऐसा शहजादा ढूंढ लेंगे जो इससे बहुत प्यार करेगा। उसने रोहिया के भरे भरे गालों को खींचते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर वो शर्माकर अपना चेहरा तकिए में छुपा चुकी थी। अच्छा, आप सो जाओ, फिर सुबह एडमिशन के लिए भी तो जाना है। उसके कहने पर वो अपना सर हिलाकर वार्डरोब से नाइट सूट निकालकर वॉशरूम में घुस गई। यहीं रुको बेटा, बस मुझे 15 मिनट लगेंगे, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके कॉलेज से बाहर आते ही हुसैन साहब ने मोबाइल अपनी जेब में रखकर कहा, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बस अभी आ रहा हूँ। रोया, एक दोस्त की वालदा इस वक्त हॉस्पिटल में है, उसे पैसों की ज़रूरत है। हॉस्पिटल यहीं पास में है, मैं उसे पैसे देकर आ रहा हूँ।
ٹھیک ہے, آپ جائیں, بس جلدی آ جائیے گا. یہیں رہنا, میں بس 15 سے 20 منٹ میں آ جاؤں گا. اور عائزہ کو کہنا جب تک میں نہیں آ جاتا وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. ان کے کہنے پر اس نے اپنے سر کو جنبش دی اور واپس کالج کے اندر چلی گئی. عائزہ نے ابھی تک اس کی وجہ سے ایڈمیشن نہیں لیا تھا. اس کا کہنا تھا کہ اسی بہانے ان دونوں کی ملاقات ہو جائے گی, کیونکہ میٹرک کے پریکٹیکل کے بعد سے ان دونوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. کال پک کرتے ہی داد نے اسے سلام کیا. ٹائم کیا ہو رہا ہے داد؟ اس کے سوال پر داد نے حیرت سے گھڑی کی جانب دیکھا. کیا اس نے ٹائم پوچھنے کے لیے فون کیا تھا؟ سر, 10 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں. کہاں ہو تم اس وقت؟ سر, گھر پر ہوں. میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ 10 بجے تمہیں مجھے پک کرنا ہے. اس کے کہنے پر داد نے اپنے سر پر ہاتھ مارا. سر, وہ میں نے سنا تھا کہ آپ کی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے. اس نے کمزور سا بہانہ بنایا, کیونکہ یہ بات وہ اسے بتا کر اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتا تھا کہ اپنے سر کو واپس لانا وہ بھول گیا تھا. بہانے بنانے کے بجائے یہاں آؤ. ایڈریس بھیج رہا ہوں تمہیں, اور 5 منٹ میں تم یہاں نہیں پہنچے تو میرے قتل کیس لسٹ میں اگلا نام تمہارا ہوگا. جی جی سر, بس میں آ رہا ہوں. اس نے جلدی سے فون رکھا اور گھر سے نکل گیا. اگر 5 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر ہو جاتا تو بیسٹ واقعی میں اگلا نمبر اس کا لے آتا. روحی, یہ میری دوست اور میری کزن ہے, اور اب یہ بھی ہمارے ساتھ اسی کالج میں ایڈمیشن لے رہی ہے. اس کے قریب آتے ہی عائزہ نے اپنے برابر کھڑی لڑکی کا اس سے تعارف کروایا. یہ کتنی پیاری ہیں, جتنا سنا تھا آپ اس سے زیادہ پیاری ہو. اسے دیکھتے ہی ہمنا نے کہا, جبکہ اپنے لیے تعریف سن کر اس نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی. آپ عائزہ کی دوست ہو تو پھر میری بھی ہو. بالکل, اور اب انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات کلاس میں ہوگی. عائزہ اور اس کے ساتھ الوداعی کلمات ادا کر کے وہ کالج سے چلی گئی, کیونکہ باہر اس کا بھائی ویٹ کر رہا تھا. تم واپس کیوں آ گئی؟ پاپا کو ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا, اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ میں واپس اندر چلی جاؤں, اور یہ بات بھی کہی کہ عائزہ سے کہنا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا عائزہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے. اچھا, کتنا ٹائم لگے گا انہیں آنے میں؟ 15 سے 20 منٹ کہے تھے. اچھا, تو جب تک ہم سامنے بنے کیفے میں ہو کر آئیں. اس کے کہنے پر روحیہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا. نہیں عائزہ, کیا ہو گیا ہے؟ ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم کون سا ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, بس کیفے میں چلتے ہیں. تم کچھ لینا چاہو تو لے بھی لینا, ویسے بھی تم آج تک کبھی اکیلے گھر سے باہر بھی تو نہیں گئی ہو. اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے باہر کی جانب لے جانے لگی, جب روحیہ نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا. نہیں, مجھے کہیں نہیں جانا. ماما کو پتہ چلا تو ڈانٹ پڑے گی. پاپا جب آئیں گے تو جب تمہیں چلنا ہو تو وہ ہمیں لے جائیں گے. روحی, زندگی میں تھوڑا تو ایڈونچر لاؤ. مجھے ہی نہیں جانا عائزہ, تمہیں اتنا شوق ہے تو تم چلی جاؤ. تم کیا میری بات نہیں مانو گی؟ نہیں, تمہیں انکل آنٹی کی قسم. تم ایسا نہیں کر سکتی ہو, قسم واپس لے لو. میں ایسا کر چکی ہوں اور میں واپس نہیں لوں گی. ایسے موقع بار بار نہیں ملتے. آج پہلی بار مجھے موقع ملا ہے تمہارے ساتھ باہر جانے کا, تو میں فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں؟ اس کی نم آنکھوں کو نظر انداز کر کے وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے باہر کی جانب لے کر چلی گئی. کہاں ہو تم اس وقت؟ کال پک کرتے ہی سنجیدہ سی آواز اسے سنائی دی. لاہور. اچھا, لاہور میں ہو, لیکن کہاں سے آ رہے ہو؟ سعودیہ. کیا کرنے گئے تھے؟ ڈیڈ, جب جانتے ہیں تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ تمہاری ان حرکتوں سے میں تنگ آ چکا ہوں. تیمور صاحب کی غصے بھری آواز اسے سنائی دی, جسے سن کر گہرا سانس لے کر وہ اپنی جگہ سے اور کیفے سے باہر آ گیا.
इसमें तंग आने वाली क्या बात है, बल्कि आपको तो अब इस सब की आदत हो जानी चाहिए। तुम क्यों ऐसे काम करके मुझे गुस्सा दिलाते हो? वो जितने गुस्से से कह रहे थे, दूसरी तरफ मौजूद शख्स उतने ही इत्मीनान से खड़ा था। चलो, हमने कैफे देख लिया, अब चलते हैं। कैफे के करीब आते ही उसने कहा और वापस कॉलेज जाने लगी। वैसे भी कॉलेज और कैफे आमने सामने ही बने थे। रुको, क्या हो गया है रूही? मैं तुम्हें बता रही हूं आयजा, अगर मामा को इस बारे में पता चला तो मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर लूंगी। मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसे कभी पापा भाई के बिना नहीं आई। देखो मेरा दिल भी कितना तेज धड़क रहा है। उसने खुद ही अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया, जो मामूल से ज्यादा तेज धड़क रहा था। उफ़ अल्लाह, डरपोक, जाओ तुम कॉलेज। तुम नहीं चलोगी? नहीं, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाऊंगी। तुम चली जाओगी या मैं छोड़ कर आऊं? नहीं, मैं चली जाऊंगी, सामने ही तो है। उसकी बात सुनकर आयजा अपना सर हिलाकर कैफे में चली गई, जबकि वो खुद भी गहरा सांस लेकर कॉलेज जाने के लिए मुड़ी। जब नज़र सामने खड़े शख्स की तरफ उठी, जो उस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वाइट शर्ट के साथ उसने ब्लैक जीन्स और जैकेट पहन रखी थी। उसकी नज़रें सामने खड़े शख्स की जैकेट पर मौजूद थीं, जहां कुछ अलग सा नजर आ रहा था। उसने हर तरफ देखा। कैफे और कॉलेज के अलावा इस जगह में बस एक वीरान बिल्डिंग मौजूद थी, और वहां पर एक आदमी बंदूक का निशाना इस शख्स की तरफ किए बैठा था। बिल्डिंग में छुपे उस आदमी का सिर्फ सर दिख रहा था, जबकि ये मंजर देखते ही इसका जहन तेजी से चलने लगा और वो भागने के अंदाज में खुद से चंद कदम दूर शख्स की तरफ बढ़ी और उसे धक्का दे दिया। गोली चली थी, जिस पर चलाई थी वो बच चुका था, लेकिन इसके बाजू पर लग चुकी थी। बंदूक पर शायद साइलेंसर लगा हुआ था। सर, आप ठीक हैं? दाद भागता हुआ उसके करीब आया। वो अभी भी यहां पर आया था और यकीनन यहां का सारा मंजर देख चुका था। उस आदमी को पकड़ो, वो बिल्डिंग में है, दाद से कहकर वो रोती हुई रोहिया की जानिब बढ़ा। उसके बाजू से खून निकल रहा था और पहने हुए सफ़ेद कपड़े भी खून में रंग रहे थे। बच्चे, रोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। मामा, तकलीफ की वजह से उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। मामा, ये तकलीफ इस नाजुक वजूद के लिए बहुत ज्यादा थी। जब भी ये तकलीफ बर्दाश्त ना करते हुए वो बेहोश हो चुकी थी। इर्द गिर्द लोगों का रश लगना शुरू हो चुका था, जिन्हें नज़रअंदाज करके उसने रोहिया को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर गाड़ी की तरफ चला गया, जो यहाँ दाद लाया था। रोहिया का पहना सफ़ेद दुपट्टा उसने उसके बाजू पर बांध दिया, क्योंकि उस वक्त उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे वो उसके खून रोकने के लिए उसके बाजू पर बांधे। कौन है वो लड़की? हॉस्पिटल में उसके पास पहुंचते ही तैमूर साहब ने सबसे पहला सवाल पूछा। उनकी आवाज़ सुनकर इसने चौंक कर सर उठाया और फिर उनके पीछे खड़े दाद को घूरने लगा, जबकि उसके ऐसा करते ही दाद ने अपनी नज़रें झुका ली। इसे मत देखो, आने में देर हो गई थी तो इसीलिए मैंने खुद इसके पास फ़ोन किया था। तुम मुझे बताओ, वो लड़की कौन है? उसका नाम क्या है? अब कैसी है? डैड, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है। इस वक्त वो बेहोश है और जब होश में आएगी तो सबसे पहले उसका नाम पूछूंगा। आप यहाँ क्या करने आए हैं? दाद के बताने पर तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो यहाँ चला आया। मुझे उस लड़की का शुक्रिया अदा करना है जिसने मेरे बेटे की जान बचाई। मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। उस लड़की ने मेरी जान नहीं बचाई, वो बस एक वसीला बनी थी। गोली किसने चलाई? उनके पूछने पर उसने दाद की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। सर, वो आदमी पकड़ा गया है, इस वक्त वो टॉर्चर सेल में है। वो आदमी पकड़ा गया है?
इस वक्त वो टॉर्चर सेल में है, जहां मैं उसे टॉर्चर करके ये बात जान लूंगा कि गोली उसने किसके कहने पर चलाई थी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी कौन सी किसी से कोई दुश्मनी है? उसकी बात पर तैमूर साहब ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। तुम्हारे पास कोई एक वजह नहीं है दुश्मनी की। सबसे पहली वजह तुम सियासतदान तैमूर काज़मी के बेटे हो, और दूसरी वजह जो सबसे बड़ी है, जिसे हर कोई जानता है, और वो ये कि तुम बेस्ट हो, जिसे ये डर नहीं है कि वो खुले आम लोगों को मारता फिरता है। अगर तुम अभी तक बचते आए हो तो उसकी वजह ये है कि पुलिस को आज तक तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतनी सफाई से काम करता है, भीड़ में लोगों को मारता है, फिर भी आज तक किसी ने उसे नहीं पकड़ा। और ये बात आप भी जानते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता हूं जो मुजरिम होते हैं, जो जुल्म करते हैं, और ये कानून उनके किए की सज़ा नहीं देता। उसकी बात पर तैमूर साहब ने अफसोस से उसे देखा। तुम जानते हो जहां तुम्हारे इस काम की वजह से मैं कितना परेशान रहता हूं, हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि तुम्हें कुछ ना हो जाए। उनकी आवाज़ भीग चुकी थी। खैर, मुझे इस लड़की के पास लेकर चलो, मुझे उसे देखना है। उनकी बात पर अपना सर हिलाकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बहुत कम उम्र लग रही है, उसे देखते ही तैमूर साहब ने कहा, लेकिन मैं इसका ये एहसान नहीं भूलूंगा। डॉक्टर ने क्या कहा है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं, गोली बस छू कर गुजरी थी और ये डरपोक लड़की उसी में बेहोश हो गई। एक कम उम्र लड़की से तुम और क्या उम्मीद रखते हो? इसका ख्याल रखना। और दाद जहान से बात करके उन्होंने अपना रुख दाद की तरफ किया। उसकी घर वालों का पता करो। आप क्या करेंगे जानकर? उसने पेशानी पर बल डालकर अपने बाप को देखा। उसने जान बचाई है तुम्हारी, जहांज़ेब तैमूर काज़मी की। ये कोई आम बात नहीं है। ठीक से शुक्रिया अदा करूंगा उस बच्ची का, उसके घर वालों का, और उसका ख्याल रखना। उसका कंधा थपथपाकर उन्होंने एक नज़र बेड पर बेहोश रोहिया पर डाली और दाद को अपने साथ आने का इशारा करके वहां से चले गए। उनके जाते ही वो बेड पर बैठकर गौर से उसका चेहरा देखने लगा। साफ रंगत उस वक्त जर्द हो रही थी, फूले फूले गुलाबी गाल और लंबी पलकें। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, बेइंतहा मासूमियत। उसके गुलाबी लब दिखने में ही इतने नर्म लगते थे कि उन्हें छूने की चाह महसूस होती। वो यकटक उसके चेहरे को देखे जा रहा था जब उसे रोहिया की पलकों में जंबिश महसूस हुई। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। नज़र सबसे पहले सफ़ेद छत पर गई और वो झटके से उठी, जिससे बाजू में तकलीफ हुई। हल्की सी चीख उसके लबों से निकली, जबकि आंखें नम हो गई। दर्द हो रहा है? भारी मर्दाना आवाज़ पर उसने अपनी तकलीफ से ध्यान हटाकर बेड पर अपने बिल्कुल करीब बैठे शख्स को देखा। आप कौन हैं? जिसे तुमने धक्का दिया था, जिसके बदले की गोली खाई थी। मुझे मामा के पास जाना है। मामा के पास क्यों जाना है? मुझे दर्द हो रहा है। अब की बार आंसू उसकी आंख से गिरना शुरू हो चुके थे। यकीनन उसे दर्द ज़्यादा हो रहा था, या शायद ये कम दर्द भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हारे दर्द का इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, मुझे मामा के पास जाना है। रोहिया की बात सुनकर वो गहरा सांस लेकर बड़बड़ाया, मामाज गर्ल। मोबाइल जेब से निकालकर उसने दाद को कॉल मिलाई और उसे कमरे में बुलाया। कहाँ दर्द हो रहा है? जहान ने उसके बाजू पर हाथ रखना चाहा, जिससे वो थोड़ा खिसक कर पीछे हुई। उसकी इस हरकत पर जहान ने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ? आप मुझे हाथ मत लगाएं। क्यों? उसने फुर्सत से इस छोटी सी नाक और गुलाबी लबों वाली लड़की को देखा। आप अजनबी हैं। मामा कहती हैं अजनबी से दूर रहना चाहिए। हाँ, हूं तो मैं अजनबी, लेकिन ये बात
जब जहन में नहीं आई जब तुमने मेरी जान बचाई थी? मामा कहती हैं कि लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने देखा वो आदमी आपकी तरफ गोली चला रहा था, तो बस इसीलिए ये सब किया। मुझे जानती हो तुम, मैं कौन हूं? उसने मध्यम आवाज में उसे देखते हुए पूछा, जिस पर उसने अपना सर नफी में हिला दिया। कौन हैं आप? जहान। तुम बस मुझे इतना ही जान लो और मुझे बताओ तुम वहां कैफे में क्या कर रही थी, वो भी अकेली? मैं कॉलेज गई थी फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए। फिर मेरी दोस्त आयजा ने मुझे मामा पापा की कसम दी और मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज के सामने बने कैफ़े में ले गई। फिर मैंने आपको देखा और मैं दरमियान में आई, जिससे मुझे गोली लगी और फिर शायद मैं बेहोश हो गई। जहान हैरत से उस लड़की को देख रहा था जिसके नज़दीक वो अजनबी था, फिर भी वो उसे पूरी तफसील बता रही थी। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? आप अजनबी हैं, मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊंगी? रोहिया के कहने पर बेसाख्ता उसकी हंसी छूटी। वो अजनबी को अपना नाम नहीं बता सकती थी, जबकि बाकी की तफसील आराम से बता चुकी थी। इस लड़की में कितनी अकल थी, ये बात वो इन चंद मिनट में ही जान चुका था। सर, आपने बुलाया था? कमरे में दाखिल होकर दाद ने कहा। पता चल गया? जी सर, वो इस वक्त कॉलेज में ही है। उसकी बात पर अपना सर हिलाकर वो रोहिया की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं। मेरे लिए अब से तुम प्रिंसेस हो और अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। कहाँ हैं वो? उसने बेचैनी से पूछा। दाद तुम्हें उनके पास छोड़ आएगा। उसने दाद की तरफ इशारा किया, जबकि उसके कहने पर रोहिया ने अपने कदम ज़मीन पर रखे और वहाँ से जाने लगी। उसे तो बस उस वक्त अपने पापा के पास जाने की जल्दी थी। जहाँ ज़ेब ने हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा वो सफ़ेद दुपट्टा देखा जिस पर खून लगा हुआ था। उस वक्त वो बिना दुपट्टे के खड़ी थी और उसे एहसास भी नहीं था। रुको प्रिंसेस, भारी आवाज़ ने रोहिया के चलते कदम रोके। उसने मुड़कर जहान की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। अपनी जगह से उठकर वो रोहिया के करीब आया और अपनी जैकेट उतारकर उसके कांधों पर डाल दी। दाद, ध्यान से लेकर जाना। उसका अंदाज दाद को साफ समझा रहा था कि ध्यान से लेकर जाना, वरना कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। जी सर, आप बेफिक्र रहें। रोहिया को लेकर वो कमरे से चला गया और उसके जाते ही जहान ने बेड पर पड़ा वो सफ़ेद दुपट्टा उठा लिया। अपने बजते फ़ोन को उसने पहले ही बेल पर उठा लिया। सब ठीक है दाद? जी सर। कहाँ छोड़ा उसे? उनके वालिद के पास, कॉलेज में ही थे। काफ़ी परेशान थे, मैडम को ही हर जगह ढूंढ रहे थे। तुमने उनसे क्या कहा उनकी बेटी के बारे में? सर, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ पहुँचते ही मैडम ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सांस काफ़ी फूल रहा था, लेकिन जब तक बात मुकम्मल नहीं हुई वो चुप नहीं हुई। उसकी बात सुनकर जहाँ ज़ेब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। जहन में बेइख्तियार उसका तस्वुर आया। फूली सांसों के साथ बातें करती वो फूले फूले गालों वाली मासूम लड़की कितनी क्यूट लग रही होगी। नाम क्या है उसका? रोहिया, रोहिया हुसैन। दाद की बात सुनते ही उसने कॉल काट कर अपनी आंखें मूंद ली। रोहिया हुसैन नहीं। उसने खुद ही अपनी बात की नफ़ी की और फिर एक ख्याल आते ही लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। रूह, जहान की रूह, जहान ज़ेब तैमूर काज़मी की रूह, रोहिया हुसैन नहीं। उसने खुद ही अपनी बात की नफ़ी की और फिर एक ख्याल के आते ही लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। रूह, जहान की रूह, जहान ज़ेब तैमूर काज़मी की रूह। उसने अपनी आंखें बंद करके रोहिया का तस्वुर किया। लबों पर एक मुस्कुराहट दौड़ी
जो कि जल्दी ही जुदा हो गई। उसने अपनी आंखें दोबारा खोली। इस बार चेहरे पर सख्ती थी, जो बेस्ट के चेहरे पर रहती थी। नहीं, वो मेरी कैसे हो सकती है? वो तो बहुत मासूम है। भला एक बेस्ट के साथ वो जिंदगी कैसे गुजार सकती है? नहीं, मेरी और उसकी दुनिया अलग है, बहुत अलग। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जहां ज़ेब काज़मी ने अपनी पसंद को छोड़ा था, लेकिन वो भी सिर्फ इस शर्त पर कि वो उसे दोबारा कभी ना मिले। अगर रोहिया हुसैन उसे दोबारा मिली तो फिर जहान की रूह को उससे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इसके घर में दाखिल होते ही ज़ोहरा बेगम और हरीम उसे देखते ही परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी, क्योंकि उसके कपड़ों पर लगा खून दूर से ही दिख रहा था। क्या हुआ है इसे? उसके जर्द चेहरे को देखकर ज़ोहरा बेगम ने परेशानी से कहा। हरीम, इसे कमरे में ले जाओ। ज़ोहरा बेगम के सवाल का बिना कोई जवाब दिए उन्होंने हरीम से कहा, जो उसे कमरे में ले गई। हुसैन, क्या हुआ है इसे? कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। छोटा सा? हुसैन, उसकी हालत देखी है आपने? पूरी जर्द हो रही है और कपड़े उसके खून से रंगे हुए हैं। ज़ोहरा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, ठीक है हमारी बच्ची, बस इस पर शुक्र अदा करो। नरमी से कहते हुए वो उन्हें अंदर अपने साथ ले गए। क्या हुआ है रोया तुम्हारे साथ? उसे बेड पर बिठाकर हरीम ने फिक्रमंदी से कहा। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसने अपने अंगूठे और पहली उंगली के पोरों को मिलाकर उसे बताया। ये बात हुसैन साहब ने उसे गाड़ी में ही बता दी थी कि ये बात किसी को नहीं बतानी कि तुम्हें गोली लगी है, बिला वजह सब परेशान होंगे। उनकी ये बात सुनकर उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। वो जो कब से सोच रही थी कि सबको अपनी इस बहादुरी का किस्सा सुनाएगी कि रोहिया ने गोली खाई है, और वो सारी सोचें डूब चुकी थी, क्योंकि पापा की भी तो माननी थी। अच्छा, तुम ऐसा करो, कपड़े बदल आओ, मैं हेल्प कर देती हूँ, फिर तुम्हें जूस बना कर दूंगी। हरीम ने उसके कपड़े अलमारी से निकालते हुए कहा, और कमज़ोरी होने के बावजूद वो मुस्कुराते हुए अपने लिए परेशान अपनी भाभी को देखती रही। वो इस वक्त अपने बनाए गए टॉर्चर सेल में मौजूद था। वहाँ चंद कमरे बने हुए थे, जिनमें से वो सबसे पहले वाले कमरे में दाखिल हो गया, जहाँ एक आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसका सर लटका पड़ा था, जिससे दिख रहा था कि वो बेहोश है। उसने दांत को इशारा किया, जिसे समझकर वो बाहर चला गया, और 2 मिनट बाद ही उसकी वापसी हो गई। उसके हाथों में बाल्टी थी, ठंडे यख पानी से भरी बाल्टी, जो उसने कुर्सी पर बंधे शख्स पर उलट दी। उसके ऐसा करते ही वो शख्स हड़बड़ा कर उठा। नज़र सबसे पहले अपने सामने खड़े उस शख्स पर गई, जिसने इस वक्त वाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स और पहनी हुई थी। एक ही बार सवाल पूछूंगा, जवाब दे देना, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। शर्ट की आस्तीन कोनियों तक चढ़ाकर वो इस शख्स के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। नाम क्या है तुम्हारा? जुबैर। जवाब देकर उसने डरते डरते अपनी निगाह टेढ़ी करके अपने से चंद इंच फासले पर रखी इन चीज़ों को देखा। छोटी से लेकर बड़ी तक मारने वाली, किसी को चोट पहुंचाने वाली, हर चीज़ यहाँ मौजूद टेबल पर तरतीब से अलग अलग करके रखी हुई थी। इन चीज़ों को देखकर उसने अपना थूक निकला। बेस्ट, मुझे जाने दो। किसके कहने पर तुम मुझे मारने आए थे? उसने संजीदा चेहरे के साथ फिर सवाल किया। अब्दुल्ला, मुझे उन्होंने भेजा था। उनका कहना था कि वो जो ड्रग्स, असलहा वगैरह वो दूसरे मुल्क में पहुंचाना चाहते हैं, वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रही। तुम उनके 3 बंदे मार चुके हो, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो अब्दुल्ला तुम्हें मार देगा। मरना तो तुम्हें है। नहीं, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा,
اس نے جلدی سے کہا، بچنے کی امید جو نظر آ رہی تھی۔ اپنا اگلا مال وہ کہاں بھیجے گا؟ ابھی اپنا مال وہ پاکستان کے شہر میں ہی بھیجے گا۔ کون سا شہر ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو لڑکا یہ کام کرے گا اس کا نام زین ہے۔ لڑکے کا پورا نام کیا ہے؟ زین غفار۔ وہ اسی شہر میں رہتا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے جانے دو۔ تم سے کس نے کہا میں تمہیں جانے دوں گا؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں بیسٹ۔ میں نے کب کہا تھا کہ یہ سب جاننے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے ٹیبل پر رکھی بندوق اٹھائی، جسے دیکھ کر زبیر کے چہرے پر خوف چھا چکا تھا۔ بیسٹ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہارے لیے کام کروں گا، تم جو بولو گے میں کروں گا۔ بیسٹ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ موت کے خوف سے تم اپنے مالک کے ساتھ غداری کر رہے ہو، کل میرے ساتھ بھی کر سکتے ہو۔ مجھے تم جیسے غدار لوگ نہیں چاہیے۔ اس نے گولی چلائی جو زبیر کے بازو کو چھوتی ہوئے گزر گئی، اور درد سے اس کی چیخ نکلی، جسے سن کر بیسٹ کے اندر اطمینان بھری لہر دوڑ گئی۔ تم مرد ہو کر اس درد پر چیخ رہے ہو، وہ تو ایک نازک سی لڑکی تھی جسے تم نے یہ تکلیف دی تھی، اسے کتنا درد ہو رہا ہوگا۔ دانت پیستے ہوئے اس نے غصے سے کہا، اور بندوق اس کے دوسرے بازو پر رکھ کر چلا دی۔ اس کے بازو سے نکلتا خون زمین پر گرنے لگا، اور درد سے تڑپتے ہوئے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ سر، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے کھڑے ہوتے ہی داد نے پوچھا۔ اس کا علاج کرو، جب ہوش میں آئے تو دوبارہ یہی ڈوز دو، اور اس کے بعد جس بلڈنگ سے اس نے گولی چلائی تھی وہاں کی چھت سے اسے پھینک دینا۔ اس کی بات سن کر داد نے جلدی سے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ بیسٹ نے مڑ کر ایک نظر کرسی پر بندھے زبیر پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے کپڑے بدلے، کیونکہ سفید شرٹ پر خون کے داغ لگ چکے تھے۔ فریش ہو کر اس نے ڈارک بلو ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ زیب تن کی تھی۔ اپنے کمرے میں موجود نرم صوفے پر بیٹھ کر اس نے ٹیبل پر رکھا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور اسے جلا کر لبوں میں دبا لیا، جبکہ ذہن کے پردے پر اپنی پرنسس کے ساتھ ہوئی ملاقات چل رہی تھی، اور اس کا خیال ہی جہاں زیب کے لبوں پر مسکراہٹ لا چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔